Assalamualaikum and a very good morning to all my charming students. I hope you all are very fit and fine and taking care of your health during this tough situation, right student? So student, as you all know that in explanation part number 1, what we have learned about Seema and her family members. Who was there in her family members? Seema के family members में कौन कौन थे? Come on, बोलो. Mother, father, Nani and Ravi Bhaiya, right? Seema used to go every day to the school, and when she returns from the school, she shares all her secret to her Nani and Ravi Bhaiya, right? Yesterday we have learned about the Nani. Now today we are going to learn in part number 2 explanation of our chapter. So let's see. Now see, sharing our feelings. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my talk. Means Seema is telling कि जब भी मैं स्कूल से रिटर्न करती हूँ, लौटती हूँ वापस, मैं अपनी सारी सीक्रेट्स अपने नानी और रवि भैया से शेयर करती हूँ. The first person is my Nani. She is always excited to listen to me. She waits for me to return from school. She is quite old and often has back pain. Yesterday in explanation we have learned that Nani को back pain का problem था as Nani was old. Right student? Nani age में थी, इसलिए नानी को कौन कौन से problems थे? Come on student, remember, याद करो और बोलो. She was having back pain. Then she was not able to see properly and even she was not able to hear properly, right? वो अच्छे से देख नहीं सकते थे, वो सुन भी नहीं सकते थे और उनको बैक का भी प्रॉब्लम था. Now see, what is the next? She cannot see or hear well. Every day in the morning, Papa read the newspaper aloud to her. हर रोज़ सुबह पापा जोर से न्यूज़पेपर उनके लिए पढ़ते हैं. She does the rest of her work herself. If someone tries to help her, she gets very angry. Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetable. She says that these days children do not know how to cut vegetables properly. उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता है, फिर भी वो अपना सारा काम खुद करती है, वेजिटेबल्स भी खुद काटती है और ये भी बोलती है कि नाउअडेज द चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट द वेजिटेबल्स. वैसा बोलती है कि अभी के बच्चों को तो वेजिटेबल्स कट करना भी नहीं आता है. नाउ सी, द सेकेंड पर्सन इज रवि भैया, right? Who is the second person? Ravi Bhaiya. And who was the first person? Come on students, say loudly with me. Nani was the first person and Ravi Bhaiya was the second person. He lives with us. सीमा क्या बोलती है? वो हमारे साथ ही हमारे घर में रहते हैं. I call him रवि भैया. सीमा क्या करके उनको बुलाती है? रवि भैया. And he calls my parents भैया and भाभी. और रवि भैया सीमा के मम्मी पापा को क्या कहकर बुलाते हैं? What he calls भैया and भाभी. I do not know what our relation is, but he is very lovely brother. सीमा is telling, I don't know, मुझे नहीं पता है कि मेरा और रवि भैया का क्या रिलेशंस है, but he is very lovely brother. बहुत अच्छे भाई है. He is always ready to answer my question. Seema is telling that whenever I ask any question to Ravi Bhaiya, he is always ready to answer my question. यानी वो हमेशा मेरे क्वेश्चन को आंसर देने के लिए मौजूद होते हैं. He never say I will tell you later. वो मुझे कभी नहीं बोलते कि मैं आपको बाद में बताऊंगा. रवि भैया टीच इन अ कॉलेज. रवि भैया कहाँ पढ़ाते हैं? कॉलेज में. The student of the college respect him a lot. कॉलेज के सभी बच्चे रवि भैया को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. A few of them come home to study from him. और कुछ बच्चे तो उनके घर आकर उनसे हेल्प भी लेते हैं पढ़ाई के लिए. रवि भैया is
fond of listening to music and taking part in playing. What Seema is telling कि रवि भैया को म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक का मतलब सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है और उनको खेलना भी बहुत पसंद है. He enjoy chatting with his friend, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करना भी बहुत पसंद है. आप सब अपने फ्रेंड्स को मिस करते हो ना बेटा? येस स्टूडेंट, वी ऑल रियली मिस यू. मैं भी आप सबको बहुत मिस करती हूँ. इंशाल्लाह हमारी स्कूल जल्दी से स्टार्ट होंगे, हम सब वापस से मिलेंगे क्लास में, आप अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे और हम खूब एंजॉय करेंगे, है ना, और साथ में स्टडीज़ भी करेंगे. तो रवि भैया को भी उनके फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करना, चैटिंग मतलब बातें करना बहुत पसंद था. एंड गोइंग आउट विद देम, और उनके साथ बाहर घूमने भी जाना. आप भी चाहते होंगे ना घूमने, राइट? He has a good sense of humor and makes all of us laugh. What सीमा क्या बोलती है? उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. सेंस ऑफ ह्यूमर यानी वो बहुत लोगों को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर हमें हंसाते हैं. नाउ सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट. स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पर एक ट्विस्ट आएगा. वो ट्विस्ट क्या है? लेट्स सी. भैया कैरी अ वाइट स्टिक. वाइट स्टिक कौन पकड़ता है बच्चों? लेट्स सी. व्हेन ही गोज आउट, लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी. देखा बेटा वो ट्विस्ट क्या था? रवि भैया बाहर जाते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, वो कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते भी हैं, घर पर ट्यूशन्स भी देते हैं, बाहर खेलने भी जाते हैं. बट रवि भैया क्या है? रवि भैया को दिखाई नहीं देता है. रवि भैया इज़ ब्लाइंड. ब्लाइंड मतलब जिनकी आंखें नहीं होती है, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनको क्या बोला जाता है? ब्लाइंड. सो इसलिए जब भी रवि भैया बाहर जाते हैं, ही कैरीज अ वाइट स्टिक अलॉन्ग विथ हिम. वाई? बिकॉज रवि भैया कैन नॉट सी. हमारे 5 सेंस ऑर्गन से मैंने आपको बोला था कौन कौन से हैं. चलो रिपीट करो, रिपीट लाउडली. टच, नंबर 1 आइज, नंबर 2 नोज, नंबर 3 ईयर्स, नंबर 4 टंग एंड नंबर 5 स्किन. तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स में से रवि भैया को कौन सा सेंस ऑर्गन्स नहीं था? चलो बोलो, से लाउडली. आइज. रवि भैया को क्या नहीं था? eyes. So from the eyes he cannot able to see. He like to do all his work himself. फिर भी उनको अपना सारा काम खुद करना पसंद था. If someone tried to help him, again he wish he get angry. अगर कोई उनको मदद करने की कोशिश करते थे तो गुस्सा हो जाते थे. Whenever he need any help he asks for it. बट जब भी रवि भैया को कोई भी हेल्प की ज़रूरत होती थी, वो सामने से बोल देते थे. सम ऑफ द भैया स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टैप. कुछ लोग रवि भैया से बुक लेके जाते थे, वो बुक की रिकॉर्डिंग करते थे और वो आकर वापस रवि भैया को दे जाते थे. किस में रिकॉर्डिंग करते थे? टेप में. रवि भैया लिसन टू दिस टैप, और फिर रवि भैया उसको सुनते थे. वो रिकॉर्डिंग जो बुक करते हैं ना, वो बुक को रिकॉर्डिंग के थ्रू, टैप की मदद के थ्रू वो सुनते थे. भैया हैज़ मैनी अदर्स बुक्स टू. द पेज ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रो ऑफ राइसेस पॉइंटेड डॉट्स. अब ब्लाइंड लोग, आप सोचते होंगे कि द पर्सन हु कैन नॉट सी, जो लोग ब्लाइंड है, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो कैसे स्टडी करते हैं और वो कॉलेज में कैसे पढ़ाने जाते होंगे रवि भैया? सो स्टूडेंट, ब्लाइंड लोगों को भी स्कूल होता है, उनकी एक अलग से स्पेशल स्कूल होती है जिनमें उनको पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया जाता है. इन द नेक्स्ट पेज वी विल बी सीइंग दैट वो बुक्स कौन सी है और कैसी होती है. ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन द राइजेस डॉट्स. उनकी बुक्स बहुत अलग होती है, डॉट वाली बुक्स होती है, जो डॉट उपसे हुए होते हैं और उनको टच करके उनको पता चलता है कि वो क्या लिखा है. हम देखेंगे अभी आगे. टू हैव फन विद भैया.
I sometimes change the place of his stick. He does get upset but never get angry. कभी कभी मैं भैया के साथ मस्ती करती हूँ कि उनकी स्टिक जो है वाइट कलर की उसको मैं छुपा देती हूँ, बट वो अपसेट हो जाते हैं बट गुस्सा नहीं करते हैं. आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा. सीमा क्या बोलती है, वो मुझसे गुस्सा कभी नहीं होते. क्यों? बिकॉज आई एम हर फेवरेट सिस्टर. आई हैव हर्ड रिच दैट डोज दैट भैया स्पोक अप. मैं जैसे ही उनके दरवाजे के पास पहुंची थी, भैया ने ज़ोर से बोला, सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे. भैया ने क्या बोला, सीमा क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो. दो भैया कैन नॉट सी, भैया उसको देख नहीं सकते थे, बट फिर भी उसकी आवाज़ को सुनकर उन्होंने पहचान लिया कि सीमा आज बहुत खुश है. भैया recognize not only me but all the others family members from the sound we make as we move. सीमा क्या बोल रही है कि भैया हमें अपना हमारे आवाज़ से पहचान लेता है, हम हमारे पैरों की आवाज़ से पहचान लेते हैं कि हम कौन है. वो सारे फैमिलीज़ मेम्बर्स को अच्छे से पहचान लेते हैं. He can never tell whether I am happy or sad. और वो ऐसा बोलती है, वो हमेशा मुझे बता भी देते हैं कि आज मैं खुश हूँ या सैड हूँ, यानी उदास. भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम. सीमा क्यों खुश थी? क्योंकि सीमा फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो गई थी, इसलिए सीमा बहुत खुश थी. आई शेयर्ड माई न्यूज़ विद हिम. He petted me and said lovely. From today you are my football coach. और भैया ने क्या बोला, वेरी गुड सीमा, मैं बहुत खुश हुआ तुमसे और आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच बन जाना, यानी तुम मुझे भी फुटबॉल सिखाना. सो स्टूडेंट, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि रवि भैया के पास एक स्पेशल बुक थी जिसके ऊपर वो अपने फिंगर्स को रखते थे और उसकी मदद से वो रीडिंग करते थे, राइट. अब देखते वो बुक कैसी है. सो स्टूडेंट, उनका राइटिंग ऐसा होता है. ए फॉर एप्पल यानी एक डॉट, यानी वो क्या होता है उनका, ए फॉर एप्पल. बी में कितने डॉट्स होते हैं, नीचे ऊपर नीचे 2 डॉट. सी डी ये उनके अल्फ़ाबेट्स है, यानी ये सारे अल्फ़ाबेट्स उनकी नोटबुक पर उपसे हुए होते हैं. देखते हैं उनकी बुक कैसी होती है. सी आपको दिख रहा है ये एलिफेंट, ये डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये बड़े बड़े डॉट्स उससे हुए डॉट्स है, यानी उनके ऊपर फिंगर रखकर उनको पता चल जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है. एक काम करना, ये गेम आप भी खेल सकते हो. एक रफ पेपर लेना जो काम का नहीं है, पेंसिल लेना, उसके ऊपर आपको जो भी लिखना है वो डॉट को होल करना, राइट. उसके ऊपर छोटे छोटे होल करना, फिर उस पेज को पलट देना. आप जैसे ही उस पेज को पलटोगे तो पीछे की साइड पर आपको उपसा हुए लेटर्स दिखाई देंगे. तो उनकी ब्लाइंड स्टूडेंट्स की बुक्स ऐसे ही डॉट्स वाली होती है, बड़े बड़े डॉट्स होते हैं जिनको वो उंगलियों से छूकर उनको पता चल जाता है कि उस बुक पर कौन सा पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है और उस बुक्स पर क्या लिखा हुआ है. हमने जैसे आगे उनके अल्फ़ाबेट्स देखे, एक डॉट मीन्स ए फॉर एप्पल, 2 डॉट ऊपर नीचे एक एक डॉट यानी बी फॉर बॉल, राइट. ऐसे अलग अलग डॉट्स होते हैं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो. यू कैन सी हियर, राइट स्टूडेंट. कैन यू सी दिस ऑल डॉट्स? नाउ सी द नेक्स्ट. इतने बड़े बड़े डॉट्स होते हैं उनकी बुक पर, ऐसे डॉट्स होते हैं, ये एच है, देखा ऐसे, और ऐसे फिंगर्स रखकर उनको पता चल जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है. इनको ये बचपन से सिखाया जाता है. फ्रॉम द चाइल्डहुड डेज दे लर्न दिस. ओके, सी नाइसली. नाउ सी द नेक्स्ट. नाउ उनके टीचर्स भी ब्लाइंड्स होते हैं, सभी ब्लाइंड टीचर्स नहीं होते हैं, सम ऑफ द हैविंग अ ब्लाइंड टीचर्स. नाउ कैन यू सी दिस? See, this girl is blind, she cannot see.
but this teacher is helping how to recognize the letters from the book. ये टीचर उनको मदद करते हैं कि उनको बुक से कैसे पढ़ाया जाता है. Now see, he is also a blind student, right? See his eyes. वो अपनी आँख से देख नहीं सकता है. He cannot see anything from his eyes. But he is happy. Still he is reading from the book. Can you see the fingers? वो देखो अपने fingers को बुक कर ऊपर रखते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं. So blind student also go to the school. Even they study and they can do all their work by their own self. उनको गॉड गिफ्ट यानी खुदा की तरफ से एक गिफ्ट मिलता है. क्या गिफ्ट है? कि वो छूकर कोई भी चीज़ को पहचान सकते हैं. सी देखो बेटा, so many children are blind who cannot able to see, but still they are happy and they are reading, right? हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए that we are normal, we have all our 5 sense organs that also working. Alhamdulillah. So see student, can you see? This is the teacher and she is helping all the students to learn how to read from the book with the help of their fingers, right? See. So student, here we have complete our explanation of part 2. Inshallah, in the next video, we will be seeing more about this chapter exercise. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz. Thank you.